So we will discuss the listing invoices on receiving daily clerk daily report. So receiving clerk daily report is an important accounting documents which is more specifically related to the food, which is more specifically related to the when the items are received by the receiving clerk. So after receiving all these items and verifying all these items in terms of the price and quantity and quality, then he or she is going to make the daily report so that they can chase all or they can make a record for all the items which they have received. Food is divided into at least two categories. The food is divided into two categories. Just a moment. Huh? Yeah, the food is divided into at least two categories. First category is direct and second category is store. When we are going to receive the food items from the vendor side, so we have the two category we can classify it we can classify the food into two categories. One is direct and the second is store. Direct means the direct we can explain as when we are going to use the items food items directly. Okay, when we receive the food items from the vendor side, we will use those items immediately. Okay, we cannot we are not going to store these items for the longer period of time. So this is the first category which we call the direct category. In this category we will mostly place those type of items uh, which are having a characteristic of perishable. Okay, which are in perishable nature. Those product who are those product which having a characteristic of the perishable. And in store we will in store we can explain that they store those product or those food Sir, more items. than 1 or 2 days. Yeah, those product we can store one day, 2 days, or a week. We can store these items so that we can call the store. So the food we can divide into two part. First is direct and the second is store. So they are mentioning the about the direct. They have mentioned that item purchased for immediate use. Okay, these items we can call as the direct, extremely perishable nature that are Sir, purchased more or like less. instant product like milk, curd. Yeah, these products we have to use immediately because they are having a perishable nature. Yes, sir. So curd, bread, okay, these type of product we have to use on daily basis because they are having a perishable nature and having a characteristic of perishability. When on the other hand, इसमें लिखा भी है इन्होंने कि the perishable nature that are purchased more or less daily basis, इनको हमें डेली बेसिस पे भी लेते हैं इनको, ठीक है. एंड वी विल मूविंग फर्दर टू दी इनकी कॉस्ट क्या है इमीडिएटली लगती है एंड विल बिकम दी कॉस्ट इमीडिएटली. सो इफ यू आर गोइंग टू दी ऑन द अदर हैंड दी स्टोर फूड आइटम्स, तो स्टोर फूड आइटम हम उनको बोलेंगे जो जिनकी हम इन्वेंट्री अपने पास रख सकते हैं. जैसे ग्रोसरी के मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए थे, मीट हम अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम नॉन वेज सर्व करते हैं अपने रेस्टोरेंट में, एफ ऑपरेशन में, ठीक है. इसके अलावा कैंस बॉटल्स हैं, बॉक्स्ड आइटम है, उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं. एंड विल बिकम द कॉस्ट व्हेन द आइटम इज इशूड फॉर द प्रोडक्शन. And we can use all those products which we have already stored in our F&B operation. So we can use जब भी इनकी कोई requirement होगी तो we can use these type of product. So here we have divided into two part. food, जो भी हमें फूड रिसीव्ड हुआ है उसमें क्या करते हैं डेली सेल रिपोर्ट में दो हिस्सों में बांटता है उसको. अभी हम रिपोर्ट भी देखेंगे उसमें आपको दिखेगा, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज द डायरेक्ट आइटम एंड व्हाट इज द स्टोर्ड आइटम. So these are the classification of the food item which is divided into two parts. Now we are going to the receiving clerk daily report. So the receiving clerk daily report is prepared by receiving clerk who merely copies data from each invoices
two appropriate columns on the reported, and then enters the total for each invoices into the general distribution. Invoice into the one of the three column under the general heading, which is purchase general heading, purchase general distribution, food direct and food store, and the sundries. So इसमें ये जो आप दिख रहे हैं कि वी हैव, जब आप सेल्स रिपोर्ट देखेंगे, नहीं ये डेली रिपोर्ट में देखेंगे तो उसमें ई कॉलम होंगे, पहला होगा परचेज, इसमें आपको फूड डायरेक्ट होगा और फूड स्टोर होगा, इसके अलावा सनराइज होगी। ये सभी जो आपको फूड डायरेक्ट, फूड स्टोर और जो सनराइज दिख रहा है, ये आपको तीनों ही कॉलम आपको इसके अंदर दिखेंगे, विच इज परचेज जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये तीनों ही आइटम आपके तीनों ही हेडिंग और कॉलम इसके अंदर दिखेंगे। हम अभी नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल ऑफ दिस डेली report which is prepared by the receiving clerk. Okay, this is the report which is prepared by the receiving clerk. So this is the daily report, receiving clerk daily report, where they have mentioned, you can see over here, the purchase general distribution. The purchase general distribution, here they have divided into three part, which is direct food, stored and the sundries. Okay, now we have the unit price. ये हम सभी चीजें कहाँ से लेंगे? इनवॉइस से। अब जिन्होंने इनवॉइस वाला पार्ट देखा होगा वो समझ रहे होंगे कि यूनिट वाला पार्ट हम वहां से उठाएंगे कि हमारे पास कितनी यूनिट हमें रिसीव हुई है, किस प्राइस पे। ठीक है, ये प्राइस हमारा सारा वहीं से उठेगा। और बाकी जो ये वाला चीज, ये वाला पार्ट है, ये जो है, ये रिसीविंग का जो क्लर्क है वो अपने आप भरेगा इसको, खुद अपने आप से इसको फिल करेगा, कौन सा स्टोर में जाना है, कौन सा नहीं जाना है। he will decide which product is going to stored or which are we will use it directly. Okay, so यहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट दिख रहा है, ये भी आपको इनवॉइस से उठाना पड़ेगा, और क्वांटिटी और यूनिट वाला भी आपको वहीं से उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इधर ये क्वांटिटी से अगर हम मान के चलते हैं, क्वांटिटी से लेके टोटल अमाउंट तक, टोटल अमाउंट तो आप खुद ही से कैलकुलेट करेंगे, ये अमाउंट तक आप इनवॉइस का ही पार्ट लेंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट, आपको कौन सा आइटम वहां से मिले हैं, क्या उनकी यूनिट प्राइस थी, टोटल अमाउंट कितना था, और टोटल खुद आप करके यहाँ पर मेंशन करेंगे अपनी रिपोर्ट में। फिर ये आपका जो ये वाला कॉलम है, परचेज जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस विल बी फिल्ड बाय द रिसीविंग क्लर्क बाय हिज और हर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि कौन सा हमें स्टोर करना है, कौन सा नहीं। नाउ अभी हम इनको देखते हैं कि कैसे इन्होंने मेंशन किया, समझते हैं इस शीट को थोड़ा। तो इसमें क्या करते हैं कि पहला आप देख रहे होंगे क्वांटिटी और यूनिट, ये आपको जो यूनिट दी हुई है, दे हैव मेंशन द यूनिट विच दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडर साइड। ओके, तो ये आपको एलबीएस दिख रहा है, एलबीएस किलोग्राम, किलोग्राम, बीडीएल। ओके, तो जब हम बीडीएल की बात करेंगे, बीडीएल स्टैंड एज अ यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ओके, ये एक जैसे किलोग्राम मेजरमेंट की यूनिट है, वैसे ही बीडीएल भी एक मेजरमेंट की यूनिट है, जिसको हम कहते हैं बंडल। ओके, बीडीएल स्टैंड फॉर द बंडल, एंड एलबीएस, ये एक एलबीएस यूनिट आपको दिख रही होगी, ये भी आपके लिए शायद नहीं हो। एलबीएस एक यूनिट है, ये भी एक मास मेजर करने की यूनिट सर है। ये डेसिमल्स में होता है ना, एलबीएस? नहीं, जरूरी नहीं है, जैसे ओके। किलोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। एलबीएस स्टैंड फॉर पाउंड। जी सर। ठीक है, यहाँ पर एलबीएस का मतलब पाउंड से है, और बीडीएल का मतलब बंडल से, और केजी का मतलब आप समझ रहे हैं किलोग्राम से है। ठीक है, तो दीज आर द यूनिट जो हमें अपने वेंडर से मिली हुई है, कि इसने हमें जो स्ट्रिप स्टिक है, ये स्ट्रिप स्टिक क्या है मालूम है? ये बताया था हमने, क्या है?
बीफ है, ठीक है। तो इसकी हमें किस यूनिट में ये हमें दिया गया है वेंडर से, ये बीफ हमें एलबीएस यूनिट में दिया हुआ है पाउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये ब्रेस्ट ऑफ व्हील दिया हुआ है, ये भी एलबीएस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। और हमें क्रोकोडाइल का मीट है वो किलोग्राम में दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हमें अपनी इनवॉइस में दिया होगा वैसे वैसे ही हम यहाँ मेंशन करेंगे, अपने मन से हमें कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। समझ आ रही सभी को, समझ में आया, समझ आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नाउ दे हैव मेंशन द Yes, क्वांटिटी, sir. 30 एलबीएस, ओके, 10 एलबीएस, 10 केजी, 1 केजी, 2 बंडल। ये 2 बंडल, ये जो है आपको ये आइटम, ठीक है, ये आइटम वाला है जो आप वो देखते हो फर्न वेजिटेबल देखे हैं आपने, जो फर्न टाइप की उनकी लीव होती है, वो है ये, ठीक है। ऐसे ही ये कुछ प्रोडक्ट, कुछ आइटम्स हैं, इसमें पेरिशेबल भी हैं और नॉन पेरिशेबल भी हैं, ठीक है। ये हमें पता लगेगा कि कौन सा पेरिशेबल है कौन सा नॉन पेरिशेबल है यहाँ पर आके, डायरेक्ट मोर स्टोर में जाके। क्योंकि हम यहाँ पर क्यों पता लगेगा, हम ये देखते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि जो डायरेक्ट फूड होता है वो क्या होता है, पेरिशेबल नेचर का, और जो स्टोर फूड होता है वो नॉन पेरिशेबल नेचर का, ठीक है। सो नाउ ओके, तो हमने ये चीज देख ली। अब वी आर गोइंग टू सी दी प्राइसेस वन बाय वन। Excuse me, sir. यस, दीज आर द सर ये सन्ड्री क्या होता है? सनबर्न, सन्ड्रीज। अच्छा सनराइज बता रहे हैं अभी। नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑल दोज आइटम्स वन बाय वन। फर्स्ट इज स्ट्रिप स्टिक, स्ट्रिप स्टिक विच इज द यूनिट, हमें इसको यूनिट, हमें कितनी क्वांटिटी है इसके पास, ये हम क्वांटिटी मैच करेगा यहाँ से। सब जब मैच हो जाएंगी आफ्टर वेरीफाइंग, देन ही विल गोइंग टू मेक द रिपोर्ट फॉर द स्ट्रिप स्टिक, फॉर द डेली सेल्स रिपोर्ट फॉर ऑल दोज आइटम विच दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडर साइड। तो इसका यूनिट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब इसका है कि एक यूनिट, इसकी जो एक यूनिट का प्राइस है ये 7.95 है, ठीक है। ये यूनिट इसका पर यूनिट का हिसाब से है, पर यूनिट पीयू, ओके। तो इस अमाउंट को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, जब एक यूनिट 7.95 की है तो 30 यूनिट कितने की होंगी, 38.5। तो 38 यूनिट होंगी 238.50, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। इन सिमिलर वे द ये जो आपको ये वाला आइटम दिया है ब्रेस्ट ऑफ व्हील, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ द परचेज यूनिट, ओके। तो दिस इज द टोटल अमाउंट, यानी कि जो हमने टोटल हमारा आइटम है वो हमारा इतने का है, ये हमारी सारी ही पर यूनिट कॉस्ट है। These all are the per unit cost, and these are the total amount which we have calculated by the multiplying the total quantity from the per unit cost. In similar way the crocodile meat भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया है। फिर हमने ये जी ये इसका एक अलग से इन्होंने कॉलम बनाया है, काउ पुन फार्म, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये अलग सा आइटम है कोई, तो इसमें इन्होंने पर यूनिट की जो इनकी कॉस्ट थी ये 5 थी एंड 2 थी, इनको हमने मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 1 जा 1, और ये 2.5 से हमने मल्टीप्लाई किया 10 को, दैट इज द प्राइस, ओके। ये वही अमाउंट है। अब हमने अगर ये टोटल वाला जो अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट हुआ आएगा जो हमने, ये देखो सबसे पहले हमने, नाउ जस्ट मिनट है, ओके। सो हमने इसमें तीन कॉलम आपको दिख रहे होंगे, सबसे तीन जो रो बनाई है इन्होंने। एक तो पार्ट इसका ये है जो मीट का है, मार्केट प्राइस मीट। दूसरा पार्ट है जोंक फार्म, जो कि ये है। तीसरा पार्ट हमारा है काउपन फार्म, ठीक है। अब जब हम टोटल जब निकालेंगे, वैसे तो हमारा ये टोटल ही है, ठीक है, जो हमने ये कैलकुलेट करी है पर यूनिट से,
क्वांटिटी का तो हमारा टोटल ही है, लेकिन जब हमारे ये कॉलम, ये हमारी रो बनी हुई है अलग अलग, हर एक के अलग अलग क्लासिफाइड किया हुआ है हमने, तो जब हम इनको सबको टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो जब ये 285 आया है तो इन दोनों को हमने टोटल किया तो ये टोटल अमाउंट आएगा। अब इसमें कोई हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही हमारे पास है, तो हमने इसको 25 और 25 रहने दिया। और यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट हैं जिनका यूनिट है, जो यूनिट मेजरमेंट है किलो और बंडल में है, तो वी हैव एडेड ऑल बोथ द आइटम्स एंड कैलकुलेटेड द टोटल अमाउंट। ठीक है, सो नाउ इन last row we will calculate the total of the amount, the total amount which we have spent or which we need to settle to the vendor for these product। okay, and यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, वैसे ही हमारी जो रिपोर्ट है यहाँ पर मानी जाती है कि ये यहाँ पर काम हो गया खत्म। ठीक है, लेकिन वी हैव टू ऑल्सो मेंशन ऑल दीज प्रोडक्ट कि कौन से ये हम किसके लिए बनाते हैं, सेल्स रिपोर्ट, जो हमारी डेली रिपोर्ट है ना, सेल्स रिपोर्ट नहीं है ये, तो ये डेली रिपोर्ट है, ये हम अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें मेंशन करना पड़ेगा कौन सा हमारा आइटम स्टोर्ड में है और कौन सा हमारा डायरेक्ट यूज का है। अब ये भी ये डिसाइड करेगा डिस्कस करके, तो अब ये चीज भी करनी रह गई है। अब क्या करेंगे इसमें, हम पहले देखेंगे कि कौन सा स्टोर्ड है कौन सा इमीडिएट यूज का है। ओके, तो हमने देखा कि स्ट्रिप स्टिक है, इस मीट को हम कर सकते हैं अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टोर, तो ये भी हम ये हमने, और जो हमारा ये ब्रेस्ट व्हील है इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं, तो हमने दोनों के ही जो टोटल है वो यहाँ मेंशन कर दिया कि ये स्टोर आइटम है, इतना हमारे पास स्टोर्ड Yes, है। sir. इन सिमिलर वे हमने क्रोकोडाइल मीट, क्रोकोडाइल का मीट है वो भी हमने स्टोर कर रखा है। ठीक है, इसको हम डेली यूज नहीं करेंगे, इतना हमारे पास स्टोर रहेगा। अभी हमारे पास जो चीजें हैं नीचे ये वाली काउपन फार्म की, और ये वाली जो हमारी वेजिटेबल हैं, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। इनका नेचर है कि दे आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरिशेबिलिटी, so we have placed these items in the direct food section। ओके, तो फिर लास्ट में इसका ये हो गया, ये टोटल है ये भी टोटल है, ये आपकी जो लास्ट की लाइन है ये टोटल वाली है। समझ आया, शीट समझ आई सभी को? Yes, sir. अब आपको ये मालूम होना चाहिए इसके क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हम ये सेल्स, ये जो हमारी क्लर्क रिपोर्ट है ये बनती कब है। okay, what is the step, this is the last step when we have received all these items, okay, in our organization, और हमने सारी चीज वेरीफाई कर ली है, इनवॉइस वेरीफाई कर ली है, अपने जो हमें आइटम्स मिले हैं वेंडर से, कितनी क्वांटिटी है कितनी क्वालिटी है, क्या उसने प्राइस लगाए हैं, सब क्रॉस चेक कर लिए हैं। ठीक है, कोई इसने अपना अलग से कोई प्राइस तो नहीं जोड़ दिया है, या फिर हमने जितना बोला था उतनी क्वांटिटी तो आई है, ये कम तो नहीं है, सब जब सब चीजें चेक हो जाती हैं, दिस इज द लास्ट स्टेप when the receiving clerk is going to make our report कि हमें कितनी कितनी चीजें हमारे यहाँ पर आ गई हैं। तो उसके लिए हमारे पास अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे कि हम बात ये ईज ऑफ डूइंग के लिए है। ठीक है, जिससे कि हमारा आसानी रहे, जो भी हमारा अगर आइटम खत्म होता है तो सभी को पता रहे कि ये आइटम खत्म हो रहा है, तो हम इसको जल्दी से प्लेस कर सकें, जिससे कि हमें सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। ओके, so these are the tutorials, and now with this we have finished this chapter, which is related which were related to the food receiving and purchasing control। तो हमने इसी के साथ ये चैप्टर खत्म किया। यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल कुछ दिख रहे होंगे, लिस्ट 10 आइटम कंसीडर पेरिशेबल एंड 10 कंसीडर्ड नॉन पेरिशेबल आइटम्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री। सो इनमें से कोई आपको शायद 2-3 क्वेश्चन डीएचएम में मिल जाए। ओके, सो यू हैव टू मेक प्रैक्टिस फॉर दैट। and next is this is the numerical part of the chapter। okay, so we have already determined all the quantities and the how do we calculate the and how do we reorder the quantities। okay, we have already studied all these points। okay, so note down all those questions and try to make solve at your home।
परपेचुअल ऑर्डर हमने पढ़ा था, और एक हमने कौन सा पढ़ा था ऑर्डर? वी हैव लर्न 2 टेक्निक्स फॉर द परचेजिंग कंट्रोल। कौन कौन सी टेक्निक है वो? वन इज दी परपेचुअल एंड सेकेंड इज दी periodical. Okay, periodic and the perpetual. Now moving further to the next part, which is the chapter 5, which is related to the where we will discuss the all the food storing and the issue control. Okay, so we will discuss ki how do we store food and issue the control. As of now we have discussed the purchasing and the receiving control. ठीक है, और हमने क्या पढ़ लिया है? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। और क्या पढ़ा हमने? जो सेल्स और उनके बीच का सीवीपी एनालिसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट, एफएनबी क्या होता है और एफएनबी के साथ उसके कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक्स। फिर हमने पढ़ा सीवीपी, और हमने क्या पढ़ा? फिर पढ़ा है हमने परचेजिंग एंड रिसीविंग कंट्रोल। परचेजिंग एंड रिसीविंग कंट्रोल। बेसिक्स पढ़े हैं, सीवीपी पढ़ा है और परचेजिंग रिसीविंग कंट्रोल पढ़ा है। ठीक है, तो नाउ अभी हमने परचेजिंग भी पढ़ लिया है, तो अब हमने हमें कैसे परचेज के लिए हमें कंट्रोल की टेक्निक हमने पढ़ रही है। तो अब हमारे पास पार्ट आता है कि हम स्टोर कैसे करें, जो हमने अपना जो प्रोडक्ट या हमने जो अपने आइटम लिए हुए हैं उनको कैसे स्टोर करें, और उनके लिए किस तरह के कंट्रोल टेक्निक्स हम अपनाएं, जिससे कि हमारा जो स्टोर प्रोडक्ट है या आइटम है वो हम इफेक्टिवली स्टोर कर सकें। Okay, so here we will discuss the all these storing things, कि हम कोल्ड स्टोर में जब हम चीजें अपनी स्टोर करते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोर में बात करें, या फिर हम जो हमारे बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर या हमारे कोल्ड हाउस होते हैं वहां पर हम अपनी चीजों को कैसे स्टोर करते हैं एफएनबी ऑपरेशन में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, so moving further to the next slide, which is first we will discuss the introductory part of the storing control. Okay, so here you can see the basic definition and basic concept of the storing control. Establishing standard and standard procedure for storing, we call the storing control. When we are going to make the some procedure for the storing and follow those procedure for the effective okay, for the effective storage, okay, and avoid wastage. So these procedures and standards of the storing called as the storing control. In general term, the established standard for storing food should address 5 principal concern. Whenever we are going to talk about the food storing concept, okay, yeah, food storing thing, we need to they always address all these 5 concern which mentioned as below. Okay, which is you can see over here. Okay, so these 5 concern needs to be addressed when we are going to talk about the food storing control. So the first concern is condition of facilities and equipment. वो कैसी है? ठीक है, the first concern is condition of equipment and the facilities and arrangement of food. Now we are having next point, which is security of storage area. ओके, कि वहां पर सिक्योरिटी कैसी है। ऐसा नहीं है हमने स्टोर कर दिया तो कोई भी वहां पर, अगर आपकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम जहाँ पर कोई चीज अपनी अगर स्टोर कर रहे हैं तो वी हैव टू प्लेस और वी हैव टू, हमारे पास एक प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए उसके लिए, एंड हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, उसकी लोकेशन भी एक मेजर कंसर्न है फॉर दी स्टोरिंग
कंट्रोल में फिर है हमारे पास डेटिंग एंड द प्राइसिंग ऑफ द स्टोरिंग फूड और द स्टोर्ड फूड. So here we are just going to make the understanding for the food part. How do we control the storing things when we are going to store all our received item from the vendor side? अब हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि हम कैसे अपनी जो कंट्रोल है परचेजिंग में किस तरह से अपनी बिजनेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम लंबे से लंबे ड्यूरेशन टाइम के लिए चीजों को रख सकें और यूज सप्लाई में जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. ऐसा भी नहीं है कि हमने उनको स्टोर कर दिया कि एकदम से खराब हो जाए. तो वी हैव टू मोर कॉन्शियस अबाउट दैट कि कौन सा आइटम हमें किस तरह से रखना है, किस तरह की लोकेशन में रखना है, किस तरह की उसकी सिक्योरिटी चाहिए. ठीक है. किस तरह की उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए. वी विल डिस्कस ऑल दीज कंसर्न इन दिस पार्ट. So first, the factor one, which is the we will discuss all these factor one by one. Which is first factor is condition of facilities and the condition of the equipments. Okay, this factor that involves the maintaining proper internal conditions, which includes temperature. Okay, temperature of the store and food life can be maximized. How do we maximize the food life which we have stored in our in our store. Okay, so when food is stored at the correct temperature and at the proper level of the humidity, so there will be chance to enhance the food life or can maximize the food life and utilize in a proper way. Okay, so when we are going to talking about the condition of facilities and the equipment, so we directly refer to the all these facilities and the amenities and the equipment which are help to maintaining the temperature. Okay, and maintaining the food life and maximize the food life. As you can see here कि fresh meat के लिए हमें जो fresh meat है, fresh meat के लिए we have to use 34 to 36 Fahrenheit, which means 1 to 2 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे हमें उसको स्टोर करना है. फ्रेश अगर हम फ्रेश प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए हमें 34 से 36 इसका भी सेम टेम्परेचर है. ठीक है. नाउ डेयरी प्रोडक्ट जो हमारे हैं, डेयरी आइटम्स हैं, ठीक है, डेयरी के दूध हैं, दही है, इस तरह के जो आइटम हैं उनके लिए भी ये टेम्परेचर होना जरूरी है अगर हम उनको स्टोर कर रहे हैं ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए. और व्हेन वी आर गोइंग टू स्टोर द फिश, फ्रेश फिश, ठीक है, तो हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें -1 से +1 तक की जो टेम्परेचर है वो रखना पड़ेगा. और इसके अलावा फ्रोजन फूड जो है उसके लिए हमें 10 से 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, which means -23 to -18 degree Celsius. So we need to keep in mind when we are going to store the our food items, हमें किस आइटम का किस तरह का टेम्परेचर रखना है. आप देख रहे होंगे यहाँ पर हर एक का अपना एक अलग टेम्परेचर है. आप इसको फ्रोजन फूड को नहीं रख सकते हो 1 से 2 डिग्री में, ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. आप अपने जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उसको इतना ज्यादा टेम्परेचर में रखते हो जिससे कि ये इसका हमारा जो वेस्टेज है वो बढ़े. ओके, तो हमें वी नीड टू कीप इन माइंड द कंडीशन ऑफ द फैसिलिटीज एंड द इक्विपमेंट. समझ आया? सर नहीं. आप इसको सीधे सफर पे समझो. जब हमने कोल्ड स्टोर देखे हैं आपने कभी? यस सर. Yes. नहीं देखी नहीं सर Yes, सुने. sir. कोल्ड स्टोर में क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनको चीजों को स्टोर किया जाता है लंबे समय के लिए. इसी तरह से जब हम कोई Yes, चीज sir. बल्क में लेते हैं तो हमें उन चीजों को स्टोर करना होता है. तो हम कैसे स्टोर करें? पहली चीज तो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए जो उसको उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी उसकी जो लाइफ है नॉर्मल टेम्परेचर पे 2 दिन है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास अभी सप्लाई कम है तो हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं. तो हम उसकी लाइफ 2 दिन से हफ्ता कर देते हैं, 1 हफ्ते की कर देते हैं. ठीक है. तो उसके लिए हमें अच्छे इक्विपमेंट चाहिए और उनकी कंडीशन भी अच्छी चाहिए. और उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टेम्परेचर में कौन सी चीज रखी जानी चाहिए. ठीक है. आप यस ऐसा तो सर. हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि आप फ्रेश मीट को 10 डिग्री सेल्सियस पे रख दोगे या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उसको 10 से 15 में रखोगे. तो दीज हमें ये चीज देखनी होंगी. ये चीज हमें अगर स्टोर की हम बात करेंगे, स्टोर करने की, तो हमें अपनी जो इक्विपमेंट है उनको सही रखना पड़ेगा. और दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टेम्परेचर में कौन सा आइटम ठीक रहेगा. ठीक है, कौन सा आइटम की लाइफ अच्छी रहेगी.
ओके, अब ये तो है नहीं कि हम इसको जीवन भर रख सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जब तक हमारे पास सप्लाई दूसरा नहीं आती, रिसीविंग नहीं आती है, तब तक तो हम इसको रख सकते हैं ना कंट्रोल, सप्लाई को बने रहने के लिए। तो इसका मतलब ये है यहाँ यस पर। सर। आप समझ आया? यस सर। गुंजन Yes, समझ आया? sir. आया समझ गुंजन आपको? अब कुछ भी चीज अगर हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे, वो हम सभी उससे रिलेटेड पढ़ेंगे कि हम अपनी जो आइटम है, जो हमने अपने वेंडर से रॉ मटेरियल के रूप में ले लिए हैं, अभी हमने फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाया अपना, ठीक है, अभी हम सर्व नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में जाएंगे जब हम मीनू वाली इंजीनियरिंग करेंगे कि हम मीनू कैसे बनाना चाहिए, कैसे हम अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वहां पर हम पढ़ेंगे सर्व की बातें, ठीक है, कि हम मीनू कैसे रखें। लेकिन हम यहाँ पर अभी रॉ उसमें ही चल रहे हैं। अभी हमने अपना रेस्टोरेंट बना लिया है, हमने अब सामान खरीद रहे हैं कि हम कौन कौन सा चीज सर्व करेंगे। तो हमने ये चीजें ले ली, हम नॉन वेज भी सर्व करेंगे। तो हमने जब चीजें ले ली हैं, तो हम ये तो है नहीं कि हम रोज लेते रहेंगे इनको, एक ही बार तो लेंगे, हफ्ते में एक बार, यस सर। या फिर हम 2 हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार तो लेंगे, या फिर 2 बार ले लेंगे। तो हम जब ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं रोज लेंगे, तो उसके लिए हमें स्टोर करने के लिए होने चाहिए हमारे पास प्रॉपर तरीके से। तो हम ये देख रहे हैं कि हम स्टोर कैसे करें इन चीजों को। अगर हमने रेस्टोरेंट खोल लिया है, सामान ले लिया, चलो ये भी काम कर लिया हमने, हमने रिपोर्ट बना ली, हमारे जो क्लर्क है उसने रिपोर्ट भी बना ली, लेकिन अब हमें पता नहीं है कि स्टोर कैसे होगा, तो फिर हमारा सारा सामान लिया हुआ खराब हो जाएगा वो तो। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब जो हमारा कमरे का तापमान होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम अगर रखेंगे उसको, तो वो सर तो एक खराब। छोटा सा एग्जांपल भी तो ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल अगर करते हैं अपने घर में, अगर फ्रिज में करते हैं आइसक्रीम बॉक्स रखते हैं, तो उसको हम नॉर्मल नहीं रखते, उसको फ्रीज करते हैं ताकि वो मेल्ट ना हो। अगर उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं आइसक्रीम बॉक्स को हमेशा फ्रीज करके रखते हैं। तो यही समझ लीजिए, है ना, बस। हाँ, और वैसे भी आप अगर जब अपने फूड को, जब खाना आपके पास एक्सेस बन जाता है, एक्सेस अमाउंट में बन जाता है, तो आप उसको स्टोर नहीं करते हो टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं रखते उसको कि कल काम आ जाएगा, परसों काम आ जाएगा। कई बार होता है जब कोई फंक्शन होता है घरों में, तो क्या करते हैं लोग, जब खाना बच जाता है तो उसको वेस्ट ना करके उसको स्टोर कर देते हैं फ्रिज में, उसके टेम्परेचर को स्टोर कर देते हैं, जिससे कि हम उसको थोड़ा टाइम के लिए यूज कर सकें, उसको वेस्ट ना करें। इन सिमिलर वे, ऐसे ही हम यहाँ भी करते हैं एफ ऑपरेशन, जब हम अपने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो सिमिलर वे वी विल यूज दीज टेक्निक्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। आप अपने सिंपल एग्जांपल से भी उठा सकते हैं, ठीक है, जैसे दीपा बता रही है, अब जैसे हम बता रहे हैं, जो आपको सुटेबल लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन आपको हमारा जो मेन मोटिव है वो समझ आना चाहिए, वो जो कि कॉन्सेप्ट है। समझ आया? नेक्स्ट फैक्टर है, ये यहाँ पर कंडीशन और फैसिलिटीज की बात हो रही है, तो इन्होंने बताया यहाँ पर स्टोरेज कंटेनर, जो हमारा स्टोरेज कंटेनर है अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो हमारा आइटम है, ठीक है। अप्रोप्रिएट कंटेनर स्पेशली फॉर स्टेपल फूड, फ्रेश फूड एंड द कुक्ड एंड द प्रोसेस्ड फूड। शेल्विंग, शेल्विंग कौन से शेल्व में हमें कौन सा आइटम रखना चाहिए, ये भी जरूरी है कि शेल्विंग शुड बी सॉल्टेड, परमिट मैक्सिमम एयर सर्कुलेशन, पेरिशेबल प्रोडक्ट एंड सॉलिड स्टील शेल्व्स। ओके, शेल्व जो होनी चाहिए सॉलिड स्टील की होनी चाहिए, और हमारे पास वहां पर जो एयर का है वो सर्कुलेशन मैक्सिमम होना चाहिए शेल्व में। ओके, नॉ ये पेरिशेबल के लिए नॉन पेरिशेबल एंड रेज फ्यू इंचेस अबव दी फ्लोर लेवल, जो नॉन पेरिशेबल है उनको फ्लोर से ऊपर रखना चाहिए, जिससे कि वो नमी से दूर रहें, ठीक है। क्लीनलीनेस के बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी हम अगर स्टोर कर रहे हैं अपने आइटम्स को, तो वहां पर साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे कि हमें फंगस की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोई हमें अगर हमारा कोई चीज अगर खराब हो जा रही है, तो वहां पर हमें उसको हटा देना है, ठीक है, उसको रखे नहीं रहना है, बाकी उससे आइटम हमारे और खराब हो जाएंगे। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना होगा। ये सिमिलर वैसे ही है जैसे आप अपने घरों में आइटम्स